oncology. And meantime, I am mentoring the PMT students since last 20 years. And in this period of lockdown, many of my students, they are at their home, and proper guidance is not available, because this was a very prime time, and this was a time where it's needed a very proper interaction with the teachers. But unfortunately, because of the lockdown, these issues have occurred. And for my students, before the lockdown, Alhamdulillah, I covered the whole syllabus of 12th appearing also, as well as the 12th pass students also. But yes, there is the need for that is to revise the things. There's a need for the guidance and all. That's what actually is there. I have come up with one very good idea here right now, that the students who are going to appear in the NEET recently, like after 1 or 2 months, they will be going to appear in the NEET. In such situation, how they can revise the things. I'm talking about the biology. Okay, so I will be here as a mentor, as a teacher, helping you, guiding you in the preparation of this NEET, or not preparation actually. Preparation actually all has been done. In fact, this is not the time for preparation. Okay, preparation was the time for last 2 years. Okay, this is the time for your revision. This is the time for focusing on some important points and highlights. Okay, that's what actually. So I have come up with a very good idea. That is, I am going to take topics here, and it will not be a teaching. I'm not going to teach a topic, because this is not a time for teach it. But actually, what I'm going to do is that I'm going to take a small topic of a chapter. Okay, I'm dividing a chapter into 3 to 4 parts, and I have selected the most expected questions of this NEET, and I expect that the questions which we are going to cover it here, that will be 70–80% questions may come in this NEET. That was actually is my expectations from my own experience of 20 years. I can see that these questions are very, very valuable questions, and they are highly expected questions that they can come in the NEET. And so I have prepared the whole topic based on those questions, and I will discuss those topics according to the questions. Okay, so what I need is that be ready with that any pen and paper, start answering, or you can take a snap also on your through a mobile and all, and we'll discuss the questions, and through that discussion of the questions we'll cover the whole topic like that, and it will be very, very helpful in revising the things and memorizing the things also. That will going to help you, will give you the tricks and that how to learn this thing and all. So this is what actually is the plan which I have done for my students, and it will be beneficial for all the students and those who are aspiring for NEET. Okay, so let's start this thing. And what I am doing is right now that I will take the first unit of class 12, that is reproduction unit. We will take it. Okay, then we'll be going to take the first unit of class 11. So we'll go by unit wise. Okay, it will be on a regular basis, like we have started today, and on a regular basis I'm going to upload this video, inshallah. So in that case, what is that we are going to take a unit wise. Like we are going to start with the class 12th unit, and the first unit in the class 12th is the reproduction. In reproduction, there are 4 chapters. Okay, the one is the reproduction in organisms. The second is the plant reproduction. Third is the reproduction in the human beings, and the fourth is the reproductive health. Okay, we'll be going to first take these 4 chapters. Then we'll be going to the class 11 topic. The first unit of the class 11 is the living world. We're going to talk about the living world and so on like that. Okay. Here today, when we are going to start, let me first share my screen to you, the questions actually which I have prepared here. Okay. So this is what is here. You will find is that there is. Let me just. Well, so
this is what actually we are talking about is the first chapter. Today we are going to talk about the reproduction in the flowering plants. Okay, this chapter I have divided into 4 parts. Okay, we'll be having a 4 series of this discussion of the questions, and from this chapter, the first part will be the male reproductive system. This is the first part that we're going to talk about. Okay. Then we'll talk about the female reproductive system, where we'll talk about the parts of the ovule structure, and that is the formation of the embryo sac and all. This is what actually we're going to talk about. So this is the female reproductive system we'll talk about. Then we're going to talk about the pollination. Okay, pollination की हम बात करेंगे. And after the pollination, that will third part, pollination. Then after the pollination, the fourth part will be the fertilization and the embryogeny. तो फिर उसके बाद fertilization और embryogeny की बात करेंगे. So we have divided this chapter into 4 parts. Okay, so this is the first part, male reproductive system. Here is my some introduction, and earlier I told you that my name is Dr. Kaunain Kausar, and I did my MBBS almost in 2004. I completed my MBBS degree. Then I have specialized in radiotherapy, that is a oncology part of the oncology is the treatment of the part which it treats the patients of the cancer actually. So that's what actually is called as oncology. And I am attached with one of the very good institution of Aligarh, Sarwar classes, where I am there as a biology faculty here. Okay, so what we are going to do is that we are going to talk about the questions. Okay, now what you'll find here is that the first question we're going to talk about is a typical angiosperm anther is. Okay, so what you will find is a typical angiosperm anther. It is bilobed, monothecous and bisporangiate, first option. Bilobed, monothecous and tetrasporangiate. Okay, or bilobed, dithecous and tetrasporangiate, bilobed, dithecous and bisporangiate. Which option do you feel is correct? No, it's an easy level question. It's not a very tough question. Most of who has studied in a nice way must be knowing this thing. What you'll find is that the most common, this anther is having 2 lobes, and where 2 lobes. So if you see that when we draw the anther, we draw like this. This is here 1 lobe, and this is here we have, sorry, if we draw it again. Okay, this is the 1 lobe here, and this is the another lobe here. Okay, there are 2 lobes here, and this is what actually the common diagram which we make it. This is what actually 2 lobes. When we 2 lobes, we call it as dithecous condition. Okay, we call it as dithecous condition. There are certain conditions where you will find is a single lobe. This single lobe here, anther. This is called as monothecous. This is called as mono. So this is dithecous. This is monothecous. Dithecous condition is common in dicots, but yes, monothecous condition is also found. And one of the very, very important example of monothecous is the family Malvaceae. Family Malvaceae. In this family Malvaceae, China rose comes. तो China rose के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर monothecous condition मिलेगा. तो एक तो बात ये हो गई कि they have 2 lobes and that's dithecous condition. Now this is what actually is called as the sporangium. Okay, what is sporangium? Sporangium is the pollen sac. अगर आप इस anther को cut section में, transverse section में अगर हम देखेंगे, let me try to make the diagram here like this. Now it's a bit not very smooth because of that I'm making with the cursor. Now this is what actually is that we can see here is like this. In the cut section, we can see like this. So what you will find here is that this is the 1 lobe and this is the second lobe. The 2 lobes are there, and each lobe is having 2 pollen sacs. This is 1 pollen sac and this is the another pollen sac. So there are 2 pollen sacs. So when this pollen sac is actually called as sporangium. This is called as sporangium. Okay, so pollen sac or sporangium are synonymous structure. So there are 2 sporangium in 1 lobe. So total there are 4 sporangium. That's why it's called as tetrasporangiate.
It's called as tetrasporangiate. Okay, so the right answer is it's having two lobes, it is dithecous, and it is tetrasporangiate. If it is a single lobe, like if we say that this is a single lobe, and when we draw the single lobe anther in cut section, it appears like this. Okay, and here is one pollen sac, and here is the another pollen sac. So most of the monothecous anthers, they are bisporangiate. तो ये कैसा है? ये bisporangiate है. तो bisporangiate कहाँ मिलेगा आपको? जब ये monothecous condition होगी. जब dithecous है तो it is tetrasporangiate. लेकिन there are few exceptions also. Let me talk about it later. मैं भी इसकी बात करूंगा. इसका right answer क्या हो गया अभी? इस क्वेश्चन का right answer is C. कि a typical angiosperm is bilobed, दो lobes होंगी. Okay, dithecous means having again the two lobes की बात कर रहे हैं. And tetrasporangiate means that there are four, that is the microsporangium or four pollen sac. Okay, this is one thing that we discuss here. You can look at here also. This is what in the cut section we can see that. So this is the one lobe here, and this is the another lobe here, and there are four pollen sacs. So that's what actually it is called as. It is called as tetrasporangiate. Okay, this is another very important. This is the case with the China rose. ये जो flower है किसका है ये China rose की बात करें हम. China rose very important. आगे हम लोग जो morphology पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग discuss करेंगे. और अगर आप morphology के examples देंगे तो at many places you'll find examples में NCERT के अंदर जो examples जिसमें China rose का जिक्र आता है. तो ये China rose है. ये China rose में अगर आप देखेंगे तो ये anther नजर आ रहे हैं. क्या नजर आ रहे हैं? ये yellow क्या नजर आ रहा है? तो this is the anther. Okay, ये जो anther है ये सब सिंगल लोब है. कैसे ये है ना? दिस इज you'll find as a single lobe. ये एक लोब है ये. ओके, तो दिस एवरी एंथर here you'll find as a single lobe. और ये सिंगल लोब होते हैं और बाइस्पोरेंजिएट होते हैं. कैसे होते हैं ये? सिंगल लोब्ड एंड बाइस्पोरेंजिएट. तो दिस इज you will find is here. But you can have a monosporangiate also. यानी कि सिंगल लोब हो सकता है, मोनोथेकस हो सकता है, लेकिन एक ही उसमें क्या होगा? pollen sac होगा. और very important examples are Arcithobium and Wolffia. So Arcithobium and Wolffia very important. These two examples are very important here. In Arcithobium and in Wolffia क्या condition नजर आ रही है? Monosporangiate condition नजर आ रही है. And monosporangiate का मतलब कि उसमें एक लोब होगा. अगर हम देखें साहब तो this is like इस तरीके से ये है और इसमें एक ही pollen sac है. There's a one pollen sac. तो एक single lobe and single pollen, यानी कि monothecous and monosporangiate condition is found in Arcithobium and Wolffia. Very important. And Wolffia, all of you know क्या है? Wolffia की क्या खास बात है? Wolffia is the smallest flowering plant. Okay, and Wolffia is having the smallest flower also. The largest flower किसका है? Largest flower Rafflesia का है. And the smallest flower किसके पास है? Wolffia, and it's having the smallest. You can say that the angiosperm also. Okay. Now, what we'll find is that when we let me just. Now, what we'll find here is that we're going to talk about this question. So arrangement of four walls in Microsporogenesis from inside to out. The four layers are there in the wall of the anther, and you will find is that when we go from inside to outside, what is the sequence? वो sequence क्या है? सबसे अंदर की तरफ जो layer है वो कौन सी है? Okay, फिर उसके बाद जो layer है वो कौन सी है? और फिर उसके तो so on like that. तो अगर हमें कहाँ से चलना है? The very important thing is we have to go from inside to outside. Okay, so we have to go from let me take the pen here. Okay, we have to go from inside to outside. Okay, तो क्या होता है भाई inside to outside? तो सबसे अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई सबसे अंदर की तरफ? Tapetum मिलेगा. We'll find tapetum. Okay, तो tapetum के बाद क्या मिलेगा आपको? Middle layer. Okay, so this is tapetum is here. Then we have the
middle layers. After middle layers we have endothelium. Okay, and then we have epidermis. When we see here, so I have the diagrams here. You can see here. The right answer I told you that is the कि सबसे अंदर की तरफ क्या मिलेगा, टैपेटम. टैपेटम के बाद फिर क्या है, मिडल लेयर्स, फिर एंडोथीसियम, और फिर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है. तो दीज आर द 4 लेयर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. इनके बारे में भी हम लोग डिटेल्स भी पढ़ेंगे यहाँ पर. जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, ओके, ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है. ओके, इंपॉर्टेंट डायग्राम है. कभी कभी ये डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे सब ये ए क्या है, बी क्या है, और इनके नंबर एबीसीडी कर देंगे. एंड दे विल आस्क व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी एंड डी एंड सो ऑन. तो अगर यहाँ देखते हैं, ओके, तो ये तो पॉलन सैक के अंदर का पार्ट है. पॉलन सैक में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. तो दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ओके, उसके जस्ट बाहर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज स्ट्रक्चर्स, दिस लेयर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टैपेटम. ये क्या कहलाते हैं, ये टैपेटम कहलाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टैपेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टैपेटम का क्या फंक्शन है, टैपेटम का क्या रोल है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये टैपेटम है. टैपेटम के जस्ट आगे चलते हैं तो देयर आर फ्यू लेयर्स, 2-3 लेयर्स की क्या है, ये मिडिल लेयर होती है. दिस इज कॉल्ड एज मिडिल लेयर. दिस मिडिल लेयर इज एब्सेंट इन मेनी एक्वेटिक प्लांट्स. कि बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स के एंथर में मिडिल लेयर नहीं होता है. ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम तो एंडोथीसियम. दिस इज व्हाट एक्चुअली इज कॉल्ड एज एंडोथीसियम. ओके, एंडोथीसियम इज आल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर, क्योंकि इसके अंदर, इसके सेल वॉल में अल्फा सेलुलोज की फाइबर्स होती हैं which are hygroscopic, and endothelium is very very important in the dehiscence of anther. Dehiscence of anther का मतलब क्या होता है कि जब pollen grains mature हो जाएंगे तो anther क्या करता है, rupture कर जाता है ताकि pollen grains बाहर निकले. तो ये जो pollen grains को जो बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं dehiscence. तो dehiscence में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, एंडोथीसियम प्ले करता है. लेकिन एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में dehiscence में एपिडर्मिस का भी नाम दिया है, एंडोथीसियम का भी नाम दिया है, मिडिल लेयर का भी नाम दिया है. तो अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पांसिबल फॉर dehiscence, और उसमें तीनों ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज करना है, एपिडर्मिस भी करना है, एंडोथीसियम भी करना है, मिडिल लेयर भी करना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. लेकिन अगर इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे आपको, तो उसमें द राइट आंसर विल बी द एंडोथीसियम. तो जो मेन रोल जो dehiscence में जो प्ले करता है वो कौन करता है, वो एंडोथीसियम करता है. ओके, लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन है और ऑल ऑफ दीज है तो आप बेटर टू गो फॉर ऑल ऑफ दीज, बिकॉज एनसीईआरटी ने इसको ऑल ऑफ दीज के पॉइंट से लिया है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई विल फाइंड इज दैट ये आपका यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर है ये, एंड दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इज देयर. तो ये हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग हियर, एंड well, so this is what actually is the tapetal cells of stamens are यानी जो tapetum होते हैं. अभी हम डिस्कस किया था कि ये tapetum कैसा है. तो अभी जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर, I have just make a diagram here. तो this is ये एक pollen sac है. इस pollen sac में सबसे जो अंदर की जो लेयर है, that layer you will find is called as tapetum. ये क्या है, ये सबसे अंदर की लेयर है. दिस लेयर इज विल फाइंड इज कॉल्ड एज टैपेटम. टैपेटम के बाहर फिर वी हैव द फ्यू लेयर्स ऑफ मिडिल लेयर. तो ये क्या है, ये मिडिल लेयर की कुछ लेयर्स होंगी. ठीक है, दैट्स व्हाट एक्चुअली वी से दैट दिस इज लाइक दिस, हियर वन लेयर एंड सो ऑन. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो व्हाट वी आर टॉकिंग हियर राइट नाउ इज द टैपेटम. ये टैपेटम है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टैपेटल सेल्स. ये टैपेटम के जो सेल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ओके, they are diploid and uninucleate. There are tetraploid and binucleate. They are hexaploid and tetranucleate, and they are polyploid and multinucleate. तो पहली चीज, इसका आंसर एनसीईआरटी में बहुत प्रॉपर नहीं दिया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट. ओके, एनसीईआरटी में सिर्फ एक पॉइंट जो यहाँ पर इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड जो दिया हुआ है वो ये कि how the tapetum it becomes binucleated. This is what actually is the only point of one question has been put it there. तो लेकिन ये क्लियर नहीं किया है कि क्या है. बट एक्चुअली ये जो होते हैं ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड. क्या होते हैं ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड. ओके, एंड सेकंड थिंग, दे आर पॉलीपॉइडल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीपॉइडल. अगर डिप्लॉइड है तो वी से दैट इट इज 2n. 2n का मतलब क्या हुआ, डिप्लॉइड मींस दैट 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. जैसे हमारे पास
कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स. तो it's a 2n. So we have 23 pairs. Well, so we're talking about that is this is we have the diploid case. But what is the polyploidal? Polyploidal means that the sets of the chromosomes are multiple. We can have a multiple sets of chromosomes. That what we call it as the like this is 2n. It can be 4n. It can be 6n. So this is what actually we say that it is the polyploidal. Now, and the second thing is that multinucleated. Multinucleated means that okay, here if I say that this is the one cell here, okay, this is the one cell. So here you will find this is one nucleus, this is another nucleus, and so on. And how it happens? जैसे मैंने कहा कि एनसीईआरटी में कोई क्लियर कट बात नहीं की है, सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछा है कि how it becomes binucleated, but it is not only binucleated, it becomes multinucleated condition. And it becomes multinucleated condition because the karyokinesis is not followed by cytokinesis. कि karyokinesis होती है, but that karyokinesis is not followed by cytokinesis. So the right answer here I told you that कि ये polyploidal होगा, multinucleated होगा. And if you see here, like this is the condition here, tapetum है यहाँ पर, and this is the multinucleated conditions can be seen here. So this is what we can find it here. Okay. Now this is the next question. Which one of the following statements is correct? There are 4 statements here. इसमें से कौन सा statement जो है वो सही है? Endothecium produces the microspores. बिल्कुल गलत बात है. Microspores कौन produce करेगा? तो microspores produce करेगा microspore mother cells. और स्पोरोजीनस टिश्यूज भी बोल सकते हैं हम. तो स्पोरोजीनस टिश्यूज से बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. Tapetum nourishes the developing pollen. This is one of the very important role of the tapetum. इसका right answer क्या है? The right answer is कि tapetum it nourishes the developing pollen. Okay. The next hard outer layer of pollen is called as enzyme. ये भी गलत है. Hard जो outer layer होता है वो क्या होता है? Exine होता है. आगे भी हम इसको भी डिस्कस करेंगे. And sporogenous tissue is haploid? No. Sporogenous tissues are diploid. Later on microspore mother cell बनता है, और उस microspore mother cell में जब meiosis हो जाएगा और जब फिर microspores का formation होगा तो वो microspores क्या होंगे? Haploid होंगे. So the right answer here we say that is the D. Now this is one of the very important thing. मैंने कहा कि ये जो tapetum होता है तो tapetum का जो सबसे important function होता है, there are multiple functions of tapetum. तो पहला फंक्शन टैपेटम का क्या बताया मैंने? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ टैपेटम आई टोल्ड यू इज दैट इट इज रिस्पांसिबल फॉर द नरिशमेंट एंड द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? टैपेटम का होता है. ये फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टैपेटम. टैपेटम का जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि टैपेटम के सेल्स के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. मैंने कहा ये टैपेटम है, ये टैपेटम का सेल है, इसके अंदर कुछ ये इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज यूबिस्क ग्रैन्यूल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोलते हैं इनको? आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसको. दीज ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड एज यूबिस्क ग्रैन्यूल्स. UBISCH. This is what actually is called as यूबिस्क. तो ये यूबिस्क ग्रैन्यूल्स कहलाती हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज दैट दिस यूबिस्क ग्रैन्यूल्स दे आर कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलन ग्रेन्स का जो एक्साइन बनता है, जो स्पोरोपोलिन से बनता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे उसको. तो वो जो एक्साइन, वो जो स्पोरोपोलिन है, वो कौन फॉर्म कर रहा है? दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द यूबिस्क ग्रैन्यूल्स. सो ये टैपेटम इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन. ये सेकंड पॉइंट हुआ. तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं? द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो एंटेमोफिलस पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स जिनका पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स. तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स के सरफेस के ऊपर, ये पॉलन ग्रेन है, मैंने कहा दिस इज द पॉलन ग्रेन, और ये इसका एंटाइन हो गया, ये इसका एक्साइन हो गया, लाइक दिस है ना. दिस इज द एक्साइन, दिस इज एंटाइन एंड दिस इज द एक्साइन. और इसके ऊपर जो है वो क्या होता है? देयर इज अ layer on this exine also.
and this layer is called as pollen kit. ये कहाँ मिलेगा pollen kit? Pollen kit मिलता है आपको एंटेमोफिलस, वो pollen grains जो insects के थ्रू होते हैं. ये pollen kit sticky होता है. उस pollen kit की वजह से pollen grains जो है insect की बॉडी में जाके चिपक जाते हैं. तो ये pollen kit जो है it acts like gum की तरह, फेविकॉल की तरह काम करता है, और वो pollen grains को क्या करता है, insect की बॉडी से अटैच करा देता है. तो ये pollen kit का फॉर्मेशन भी कौन करता है? तो ये pollen kit का फॉर्मेशन भी जो है वो कौन करेगा? टैपेटम करेगा. तो टैपेटम का पहला फंक्शन न्यूट्रिशन ऑफ द pollen grains. सेकंड फंक्शन बताया मैंने स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन. थर्ड फंक्शन क्या बताया मैंने? थर्ड फंक्शन बताया मैंने pollen kit का फॉर्मेशन. एंड फोर्थ फंक्शन also you can note down, this is responsible for formation of enzymes as well as hormone. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंजाइम का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्मोन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंजाइम का नाम है कैलेज, CALLASE, कैलेज. अभी पढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो कैलेज इज द एंजाइम, इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय टैपेटम, एक बात. एंड दूसरी बात, द हार्मोन इज ऑक्सिन. तो सबको पता होगा ऑक्सिन हार्मोन. तो ऑक्सिन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, AUXI है ना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट हियर लाइक दिस. तो AUXIN इज राइट. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज ऑक्सिन. तो ये ऑक्सिन हार्मोन भी जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो दैट इज आल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द टैपेटम. तो टैपेटम इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम. द एंजाइम इज कॉल्ड एज कैलेज, इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ऑक्सिन. और ऑक्सिन हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, वैसे तो पूरा आपका फंक्शन उसमें है ही है जब प्लांट हार्मोन वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर क्लास 11th का, लेकिन एक जो वहां पर ये पॉइंट मेंशन नहीं है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है कहीं पे, कि ऑक्सिन इज द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द pollen grains and the formation of pollen grains and formation of microspores. तो माइक्रोस्पोर्स और pollen grains के फॉर्मेशन के लिए जिस हार्मोन की जरूरत पड़ती है, that hormone is called as auxin. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई. Tapetum is the one of the most important cell of the anther wall. Anther की wall में जो 4 cells हैं, कौन कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम. इसमें सिर्फ मिडल लेयर जो है वो मल्टीपल होती है, 2 लेयर्स 3 लेयर्स हो सकती हैं, बाकी सब सिंगल लेयर हैं. और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है टैपेटम. टैपेटम इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? Tapetum is, so this is what you will find is a very important role of the tapetum. Tapetum का एक बहुत important role है. It is responsible for nourishing the developing pollen grains. दूसरी चीज, एक और जो बहुत important point है वो ये कि ये जो function है, जो हमने कहा कि tapetum जो है वो pollen grains को nourish करता है, ये एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर ये काम कौन करता है? तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये काम करता है, कौन करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर काम? दिस वर्क इन ह्यूमन बींग्स इज बीइंग डन बाय सर्टोली सेल्स. अगर ह्यूमन बींग्स में अगर आप देखेंगे तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है. क्या है भाई ये? सेमिनिफेरस टिब्यूल. सेमिनिफेरस टिब्यूल में ये क्या होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं, और इसके बीच में क्या होते हैं? ये सर्टोली सेल्स होते हैं. लाइक, तो दीज आर सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन है? तो सर्टोली सेल्स जो हैं, दे आर फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म्स. स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि टैपेटम एंड द सर्टोली सेल्स, दे आर एनालॉगस. एनालॉगस का मतलब क्या होता है? फंक्शनली सेम. होमोलोगस का मतलब स्ट्रक्चरली सेम, और एनालॉगस का मतलब फंक्शनली सेम. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनालॉगस टू टैपेटम, तो सर्टोली सेल्स आर एक्चुअली द एनालॉगस टू टैपेटम. ठीक है. पॉलन किट के बारे में हमने डिस्कस किया हम लोगों ने कि पॉलन किट जो है कौन फॉर्म करता है. तो पॉलन किट अगेन इज बीइंग फॉर्म्ड बाय टैपेटम. जस्ट डिस्कस किया क्या फंक्शन है पॉलन किट का. तो पॉलन किट जो है वो पॉलन ग्रेन्स को स्टिकी बनाता है. कहां मिलता है ये? इट इज फाउंड इन, कहां मिलेगा? एंटेमोफिलस. एंटेमोफिलस का मतलब वो पॉलन ग्रेन्स जिसका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? जिसका पॉलिनेशन होता है that is insects के थ्रू, तो उसे कहते हैं that is the entomophilous here. तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर this is one of the very important thing, ये pollen grains का जो है वो पार्ट है ये. तो ये इंटाइन शो कर रहा है, यानी अगर आपको अगर याद हो pollen grain, तो हमने कहा ये तो सेल होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर सेल. ठीक है. इसके जस्ट ऊपर जो है वो क्या होता है? तो जस्ट ऊपर इसके होता है that is the इंटाइन. तो ये इंटाइन है.
इंटाइन किस चीज का बना होता है? इंटाइन बना होता है पेक्टोस प्लस सेल्यूलोज, मेन कंपोनेंट होता है। यहाँ पर इन्होंने हेमीसेल्यूलोज भी दे दिया है, ओके इट कैन बी, बट मेजर जो कंपोनेंट है जो आपको जो नीट में जो आंसर्स लगाने हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज द सेल्यूलोज प्लस पेक्टोस और पेक्टोसेल्यूलोज। तो ये तो इंटाइन हो गया। फिर बताया था इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर थिक एक्साइन। एक्साइन कैसा होता है? थिक होता है। तो ये थिक एक्साइन है। एक्साइन किस चीज का बना है भाई? तो एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। एक्साइन किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन का। और इस एक्साइन के ऊपर, ये जो एक्साइन है आप देखेंगे, इस एक्साइन के ऊपर ये जो है वो क्या निकल रहा है, ये फैटी सब्सटेंस यहाँ पे इसको दिखा रहे हैं। दिस एक्चुअली इज द पॉलन किट। ये पॉलन किट है ये। और ये पॉलन किट क्या करता है ये? तो पॉलन किट जो है वो स्टिकी बना देता है। ये एक्साइन जो है वो किस चीज का बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन का। देखेंगे ना, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, बट दिस इज एक्चुअली द पॉलन किट। ये पॉलन किट है एंड पॉलन किट इट मेक्स द पॉलन ग्रेन्स स्टिकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर डायग्राम से ये शो कर रहे हैं कि ये जो है वो यूबिस ग्रैन्यूल्स वगैरह हैं। दिस यूबिस, ये टैपेटम है, ये दिस इज द, ये टैपेटम का सेल शो कर रहा है। दिस इज द सेल ऑफ टैपेटम। टैपेटम में ये कुछ ग्रैन्यूल्स जो वेसिकल्स दिखा रहे हैं, ग्रैन्यूल्स, यूबिस ग्रैन्यूल्स, ये रिलीज हो रहे हैं। और ये यूबिस ग्रैन्यूल्स जो है वो ये सेल्स के ऊपर, यानी ये जो आपका माइक्रोस्पोर सेल इसके ऊपर आके जमा होता चला है एंड ग्रेजुअली इट इज फॉर्मिंग द, क्या फॉर्म कर रहा है? एक्साइन का फॉर्मेशन चला। तो आप देखेंगे ये इमेज ए है और ये इमेज बी है। इमेज बी में ये एक्साइन इतना बड़ा हो गया, फिर और इस तरीके से जो है वो एक्साइन वगैरह बन रहा है एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली इज द एक्साइन। ये एक्साइन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस एक्साइन के फॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो किसने किया है? वो टैपेटम ने किया है। और टैपेटम के अंदर क्या है? टैपेटम के अंदर ये यूबिस ग्रैन्यूल्स हैं व्हिच एक्चुअली आर रिस्पांसिबल फॉर दिस जॉब। ये काम यहाँ पर करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लांट सेल हैविंग फंक्शंस लाइक ऑफ सर्टोली सेल्स। अभी जैसे हमने डिस्कस करते हैं प्लांट्स में जो सर्टोली सेल्स का जो फंक्शन काम करने वाला है वो कौन होगा भाई? तो सर्टोली सेल्स क्या काम करते हैं? न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम यहाँ पर कौन करेगा? तो यहाँ पर ये काम करेगा टैपेटम। तो टैपेटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। इनसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ये सर्टोली सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है। तो आप देखेंगे कि सर्टोली सेल्स में स्पर्म्स का हेड एम्बेडेड होता है। द हेड ऑफ द स्पर्म्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड इट इज टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम हियर। यहाँ से क्या करता है? ये न्यूट्रिशन लेता है। तो यही काम प्लांट्स के अंदर कौन करेगा? तो सेम फंक्शन इन द प्लांट्स इज बीइंग डन बाय टैपेटम। टैपेटम भी दो तरीके का होता है, एक होता है एमीबॉइड टैपेटम और एक होता है सिक्रेटरी टैपेटम। तो ज्यादातर प्लांट्स के अंदर सिक्रेटरी होता है कि ये टैपेटम क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स सिक्रीट करता है। लेकिन कहीं कहीं पे एमीबॉइड भी होता है जहां पर पॉलन ग्रेन्स जो है वो एम्बेडेड हो जाते हैं। एमीबॉइड में द पॉलन ग्रेन्स, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे स्पर्म्स एम्बेडेड हो रहे हैं, इनका हेड जो है अंदर जा रहा है सर्टोली सेल्स के अंदर। वैसे ही वहां पर भी अगर हम देखेंगे जो एमीबॉइड वाले जो टैपेटम होते हैं तो वहां पर माइक्रोस्पोर्स जो है वो एम्बेड हो जाते हैं और वहां से वो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। तो दिस इज व्हाट you will find is there. The next question is that Ubis granules are produced by, again the right answer is the tapetal cells. पर जो कि हम लोग Ubis granules very very important. Ubis एक साहब थे जिनका नाम था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये ग्रैन्यूल्स क्या फॉर्म करते हैं? तो ये ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं स्पोरोपोलिनिन, दैट इज अ एक्साइन। तो पॉलन ग्रेन्स का जो एक्साइन जो फॉर्म कर रहा है वो कौन फॉर्म करेगा? तो वो करेगा टैपेटम। टैपेटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस। ठीक है, ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जैसे आप रिप्रोडक्शन यूनिट आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पर जो है पी महेश्वरी साहब का एक छोटा सा जो है वो डिस्क्रिप्शन, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि हर यूनिट से पहले एक रिसेंट साइंटिस्ट का एक डिस्क्रिप्शन है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनके ताल्लुक से क्या बात है, जिसमें कई क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। अर्नेस्ट मेयर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो वैसे ये जो साइंटिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी क्वेश्चंस जो है वो नीट में आते हैं। तो और उसमें हर चीज तो याद नहीं कर सकते हैं, लाइक करनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम पी महेश्वरी साहब के ताल्लुक से भी हम बात करेंगे, तो इसमें जो है द वेरी इंपॉर्टेंट, पी महेश्वरी इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पे। देखिए माशाल्लाह हमारे महेश्वरी साहब हैं, इज वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, और जो है वो ऊपर वाले इनकी आत्मा को शांति दे। तो बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है इनका इसमें एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक से, इनका प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में खासतौर से। अगर हम अभी आगे देखेंगे तो ये इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन की बात की इन्होंने। फिर इन्होंने एंथर कल्चर का ये टॉपिक्स आगे आएंगे सब,
तो एंथर यानी जो टिश्यू कल्चर में एक होता है एंथर कल्चर, ठीक है, तो वो नहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंथर कल्चर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि एनसीईआरटी में नहीं है इसका जिक्र, लेकिन ये कंपटीशन में एंथर कल्चर के ताल्लुक से पूछते हैं। तो एंथर कल्चर में क्या करते हैं, एंथर कल्चर के अंदर, ये एंथर की बात करें, दिस इज एंथर। तो एंथर कल्चर में अगर आप देखेंगे तो एंथर कल्चर में जो एक्सप्लांट लेते हैं जिससे कल्चर किया जाता है, वो क्या लेते हैं, तो वो लेते हैं दैट इज द पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स लिया जाता है। तो दो लोग थे जिन्होंने एंथर कल्चर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, and that was one was the गुहा साहब थे, and another the very important is the महेश्वरी साहब। तो दूसरे जो हैं वो हमारे ये महेश्वरी साहब हैं। तो गुहा एंड महेश्वरी ने एंथर कल्चर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। और एंथर कल्चर की जो सबसे जो यूनिक बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि एंथर हैप्लॉइड होता है, यानी नॉट एंथर मतलब जो हम पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, तो पॉलन ग्रेन क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। हमने उससे कल्चर किया और कल्चर करके हम क्रोमोसोम्स को डबल कर देते हैं। ये आगे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो पता चलेगा, अभी थोड़ा सा बहुत डीप बता रहे हैं हम। तो एंथर कल्चर की जो सबसे यूनिक बात है वो ये सॉरी कि उसमें हर जो कैरेक्टर है वो होमोजाइगस हो जाता है, यानी कि जैसे कैपिटल टी जेनेटिक्स में आप लोग इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सारे कैरेक्टर्स यानी अगर एंथर कल्चर से अगर कोई प्लांट डेवलप हुआ है तो वो 100% होमोजाइगस प्लांट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि which technique can lead to the 100% homozygosity in the plants, so the right answer will be the anther culture। तो एंथर कल्चर से जो है प्लांट्स कैसे हो सकते हैं, 100% होमोजाइगस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, वी हैव 45 क्वेश्चंस। इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम लोग ने 45 क्वेश्चंस कलेक्ट किया है। इस 45 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपकी नीट के बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसमें हमने रीजनिंग असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन भी कुछ रखे हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे इंशाल्लाह। तो द फाइब्रस बैंड्स डेवलप फ्रॉम सेल्स ऑफ द एंथर वॉल लेयर इज नोन एज। तो मैंने बताया था कि एंडोथीसियम के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो एंडोथीसियम के अंदर आपको मिलेंगे अल्फा सेल्यूलोज के फाइबर्स। इसके सेल वॉल में क्या मिलेगा, अल्फा सेल्यूलोज के फाइबर्स मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर, इसको फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोथीसियम इज आल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर। क्या इसका रोल है, मैंने बताया था कि अल्फा सेल्यूलोज यहां पर है, ये क्या करते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक, दे एब्सॉर्ब वाटर। जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए हैं और अब क्या करना है, अब डेहिसेंस होना है, एंथर रप्चर होगा, तो उसके लिए क्या होगा कि ये एंडोथीसियम क्या करेगा, वो कुछ मॉइस्चर जो है एब्सॉर्ब कर लेगा, स्वेल अप हो जाएगा। उसकी वजह से एंथर में जगह जगह क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं एंथर की वॉल में, और जब क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे तो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जब तक पॉलन ग्रेन बाहर नहीं निकलेगा तब तक पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज बीइंग प्लेड बाय एंडोथीसियम। मैंने ये भी बताया है कि एनसीईआरटी में क्या पॉइंट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो है वो एंथर्स को रिलीज कराने में तीनों का रोल लिखा है, एपिडर्मिस का भी रोल लिखा है, एंडोथीसियम का भी रोल है और मिडिल लेयर्स का भी रोल है। तो अगर ऑल ऑफ दीज आता है, अगर डेहिसेंस में और एंथर्स रिलीज में, तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे एंडोथीसियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट। यहाँ पे हमने बताया कि एंडोथीसियम हैज फाइब्रस, ये देखिए अगर आप एंडोथीसियम देखेंगे यहाँ पर ना, ये आपका क्या हो गया, सबसे बाहर का तो ये फर्स्ट लेयर है, ये इज द फर्स्ट लेयर, ये तो एपिडर्मिस है और ये सेकंड लेयर है, दिस इज द एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम आपको ये नजर आ रहे होंगे ना, ये जो स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से, ये आपको फाइब्रस लेयर नजर आ रही है, इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज की फाइबर्स होती हैं, एंड दैट इज द फंक्शन हियर कि वो डेहिसेंस में जो है वो होता है। तो इट इज हाइग्रोस्कोपिक फर्स्ट थिंग एंड इट हेल्प्स इन डेहिसेंस, एंड दिस इज एंडोथीसियम इज आल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर। ये सारे ही पॉइंट्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, और क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि फाइबर्स किसकी हैं, तो राइट आंसर इज दैट ये फाइबर्स सेल्यूलोज की फाइबर्स हैं, these fibers are of cellulose fibers, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the one of the following statement is not true, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो tapetum helps in the dehiscence of anther, ये तो सही है, tapetum का रोल dehiscence में नहीं है,
टैपेटम का रोल किसमें है, क्यों भाई किसमें है? टैपेटम इज हैविंग द रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। तो ये तो जो है वो स्टेटमेंट अपनी जगह पे जो है वो सही नहीं है ना। फिर एक्साइन है, एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, तो ये भी सही है। और हमें क्या बताना है, हमें नॉट ट्रू बताना है, जो गलत है वो बताना है ना। और आमतौर से इसमें क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, सही से नॉट पढ़ा नहीं और फिर ट्रू पे चले गए, है ना। और उस वक्त चूंकि कंपटीशन का टाइम क्या होता है, प्रेशर होता है तो प्रेशर में खासतौर से जो है मिस्टेक्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो प्रेशर बिल्कुल ना लेंगे, नहीं लेंगे आप। और वन माई सजेशन इज दैट कि कैरी टॉफीज कैरी करें आप जब जाएं आप वहां पर नीट का टेस्ट में, तो टॉफीज 2-4 टॉफीज जरूर रखें अपने साथ, और उस टॉफीज को मुंह में रख लिया करें। उसका क्या फायदा है? फायदा यह है कि यू विल गेट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू योर ब्रेन। आपके ब्रेन को ग्लूकोज 2.5-3 घंटे कंटिन्यूअस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है वो कंपटीशन का, मैंने भी दिए हैं कंपटीशन, ठीक है, पता है कि क्या कंडीशन होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है, तो सारी एनर्जी वहां पर खत्म। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल डाउन अगर होने लगेगा तो एरर्स की फ्रीक्वेंसी, मिस्टेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप जो है वो नीट कंपटीशन देने जाएं, हॉल टिकट तो रखें, हॉल टिकट के साथ साथ 2-4 टॉफीज भी रख लें। अगर आजकल बहुत चेकिंग वेकिंग होती है तो उनसे रिक्वेस्ट कर लें, मैडम आप जो है वो अपने पास रख लीजिएगा, जब टेस्ट शुरू होगा तो मुझे दे दीजिएगा टॉफी, मैं खा लूंगा, ठीक है। एनीवे, तो tapetum helps in the dehiscence of anther. This point is not true. Exine of this point is true. Tapetum helps in the dehiscence of anther. तो ये point जो है वो dehiscence में help नहीं है, तो ये point जो है वो हमारा आंसर क्या हो सकता है, ये हो जाएगा। Exine of pollen grains is made up of sporopollenin. ये बात अपनी जगह पे सही है। Pollen grains of many species cause severe allergies. Yes, very important. कौन सा एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दिया है, उस पर भी क्वेश्चन आएगा। That is called as पार्थेनियम, ठीक है। पार्थेनियम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन एलर्जीज, तो ये जो है भी सही पॉइंट है। स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। यस, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। -196 डिग्री सेल्सियस पर पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उस पॉलन ग्रेन्स को बाद में प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें से ये तीनों BCD सही है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला पॉइंट सही नहीं कि टैपेटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो हमें क्या बताना है, हमें नॉट ट्रू बताना है, तो द राइट आंसर विल बी द ए, ठीक है। टैपेटम का क्या फंक्शन है? न्यूट्रिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। एनिमल्स में ये काम कौन करेगा? सर्टोली सेल्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossils? बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का पॉइंट है ये कि पॉलन को फॉसिल्स के तौर पर प्रिजर्व करने में किसका रोल है। तो इसमें द वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट स्पोरोपोलिनिन। क्यों? बिकॉज स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस। मतलब इसका मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी चीज से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, टेम्परेचर से इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अल्कली एसिड वगैरह से भी उतना इसके ऊपर नुकसान नहीं पड़ता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी, वाटर, इन सब से ये डैमेज नहीं होता है, तो इसीलिए वो प्रिजर्व रहता है, बचा रह जाता है। तो बचा रह जाने की वजह से क्या होता है कि ये एक तरीके से फॉसिल्स की तरह जो है वो फॉसिल्स में पॉलन ग्रेन्स हमें मिलते हैं, ठीक है। So this is what actually, which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossils? The right answer is sporopollenin, and very very important point here. तो सिग्निफिकेंस क्या होता है पॉलन फॉसिल्स का? सिग्निफिकेंस क्या है? तो जहां पर पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स मिलते हैं, जो लोग इसकी स्टडी कर रहे होते हैं, तो जहां पर जो है वो पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स मिलते हैं, तो इसका मतलब आसपास प्लांट के भी फॉसिल्स होंगे। दैट्स व्हाट एक्चुअली द इंडिकेशन। तो पॉलन फॉसिल से क्या अंदाजा होता है कि यहाँ कहीं पे करीब में प्लांट्स भी होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये दिस इज ये पूरा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। मैंने पहले बताया था कि दिस इज माइक्रोस्पोर के सेल्स हो गए, ये इंटाइन हो जाएगा, एक्साइन आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके ताल्लुक से, ठीक है। फिर है मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूसेस। तो मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस हाउ मेनी? 3 sperms, 2 sperms and a vegetative cell, single sperm and vegetative cell and single sperm and 2। क्या आंसर इसका भाई आप बताएं, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 2 sperms, sperms is male gametes, ठीक है, and 1 vegetative cell। तो एक्चुअली होता क्या है? होता ये है कि ये है माइक्रोस्पोर। क्या है ये? मियोसिस हुआ,
मियोसिस के बाद क्या बना, ये बन गया माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, दिस इज द माइटोसिस। ठीक है, ये माइटोसिस यहाँ पे होगा, फर्स्ट माइटोसिस। जो फर्स्ट माइटोसिस होगा तो यहाँ पर दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक जो होगा, दिस इज व्हाट एक्चुअली इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल बोलते हैं। ये क्या है, ये हमारा ये वेजिटेटिव सेल हो गया। और इसी में जो है एक दूसरा सेल बन गया ये, एंड दिस इज कॉल्ड एज द जेनरेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल हो गया और ये क्या हो गया, जेनरेटिव सेल। तो ये पहला माइटोसिस हुआ। सेकेंड माइटोसिस जब होगा, when the second mitosis will take place, okay, फिर माइटोसिस हुआ, this is the another mitosis, okay। तो जब ये माइटोसिस होगा तो ये जेनरेटिव सेल डिवाइड करता है, और जब ये जेनरेटिव सेल डिवाइड करता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमेट्स। तो ये तो आपका वेजिटेटिव सेल हो गया, और ये दो क्या है, ये एक और एक, ये दो क्या है, ये मेल गैमेट्स हो गए। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली कि मेल गैमेटोफाइट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द मेल, जो पॉलन ग्रेन हमारा होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है। तो उसमें क्या बनता है, तो उसमें दो स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स का मतलब मेल गैमेट्स, और एक क्या बनता है, वेजिटेटिव सेल बनता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज वी हैव डिस्कस्ड हियर, ओके, ठीक है। तो दिस यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये एक पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ, मेल गैमेटोफाइट है ये। तो इसमें ये है आपका वेजिटेटिव सेल, मैंने बताया था कि वेजिटेटिव सेल इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल, और ये है जेनेटिव सेल। यही जेनेटिव सेल जो है वो जब डिवाइड करेगा तो दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज जो बहुत याद रखना है वो ये कि अगर क्वेश्चन आए कि टिप पर क्या मिलेगा, टिप पे मेल गैमेट्स नहीं होते हैं, मेल गैमेट्स पीछे होते हैं। टिप पर कौन सा होता है, तो टिप पर न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है जो पॉलन ट्यूब के टिप पे होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर से हमें लगता है कि सब मेल गैमेट होना चाहिए टिप पे, मेल गैमेट्स टिप पे नहीं होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर पिक्चर भी बनी हुई है, इसकी में डायग्राम दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है। तो कभी कभी डिस्क्रिप्शन नहीं होता है लेकिन डायग्राम होता है, तो उस पे भी क्वेश्चन जो है वो नीट में आ जाते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलन ग्रेन्स आर नॉर्मली shed for the pollination from the pollen sacs in, okay, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं, जो पॉलिनेशन हो रहा है तो उस वक्त पॉलन ग्रेन्स किस स्टेज पर होते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का अगर हम डेटा लेते हैं तो एनसीईआरटी ये कहता है कि 60% जो है वो प्लांट्स में जो पॉलिनेशन हो रहा है एंजियोस्पर्म में 60%, ओके, 60% हो गया। तो किस स्टेज पे होता है, टू सेल्ड स्टेज पर होता है। किस पे होता है, टू सेल्ड स्टेज पर होता है ये। और 40% केस में क्या होगा, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द 40% केस, तो इन 40% केस इट इज द थ्री सेल्ड स्टेज पर हो सकता है पॉलिनेशन। अब राइट पॉइंट तो ये है कि अगर सबसे अच्छा आंसर इसका ये हो सकता है कि 60% प्लांट्स के अंदर और फैमिलीज के अंदर एंजियोस्पर्म्स की वो टू सेल्ड स्टेज पर हो रहा है, और 40% में थ्री सेल्ड। टू सेल्ड स्टेज में कौन कौन से सेल्स हो जाएंगे, जेनेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। और थ्री सेल्ड स्टेज पे क्या हो जाएगा, दो मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल। तो अब यहाँ पर अब हमें ये ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। अब इसमें से राइट ऑप्शन क्या ले सकते हैं हम, तो चूंकि मेजॉरिटी जो है वो 60% की बात हम कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी केस में क्या हो जाएगा, डबल स्टेज सेल हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं कि बेस्ट आंसर ये होना चाहिए इसका, जो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन किया। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है, और आए हैं ऐसे क्वेश्चंस जहां पर ये पूछा गया कि सब कि क्या क्या हो रहा है। तो चूंकि मेजॉरिटी की अगर हम बात करेंगे तो मेजॉरिटी टू सेल्ड स्टेज पर हो रहा है, तो दैट्स द राइट आंसर हियर, टू सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन डिवाइड करता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जेनेटिव सेल जब डिवाइड करेगा तो बताए ये है ना, ये ट्यूब सेल हो गया और ये क्या हो गया, जेनरेटिव सेल हो गया। तो ये जब जेनेटिव सेल जब डिवाइड करता है तो क्या बनता है, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो दो मेल गैमेट्स किससे बनते हैं, जेनरेटिव सेल से बनते हैं। माइटोसिस से बनेंगे या मियोसिस से बनेंगे, माइटोसिस से। जेनेटिव सेल में जब माइटोसिस होगा तो दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये जेनेटिव सेल हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, क्या है भाई, हैप्लॉइड सारे सेल्स। ये वेजिटेटिव सेल भी क्या है, हैप्लॉइड। ये जेनेटिव सेल भी क्या है, हैप्लॉइड। और जेनेटिव सेल डिवाइड करके जो दो मेल गैमेट्स बनाएगा वो मेल गैमेट्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड, बिकॉज सारा प्रोसेस यहाँ माइटोसिस से हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर इज दैट, जेनेटिव सेल की बात हुई। Then let's talk about the next question here. Which one of the following is surrounded by a callous wall? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ये एनसीईआरटी में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है। तो किस में आपको कैलोज, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में, नीट में मेरे ख्याल से शायद 7-8 years बैक ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है ये। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय ए कैलोस बॉल? द राइट आंसर इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड सेल है? कैसा सेल है? माइक्रोस्पोर मदर सेल इज अ डिप्लॉइड सेल। कैसा सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज अ डिप्लॉइड सेल, ये डिप्लॉइड सेल। आ रही बात समझो? माइक्रोस्पोर मदर सेल इज अ डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड थिंग इज दैट एक्चुअली कि यहां पर हम जब देखते हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो इसकी सेल वॉल में देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोस। कैलोस क्या है? कैलोस एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कैलोस क्या है? कैलोस जैसे सेल्यूलोज होता है कार्बोहाइड्रेट, उसी तरीके से कैलोस भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके सेल वॉल में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? कैलोस होता है। उसका क्या रोल होता है हम लोग आगे भी देखते हैं। तो कैलोस को अगर आप देखेंगे आप, तो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है ये? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस हुआ, तो ये 2 सेल्स बने, मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2 हुआ तो 4 सेल्स बने। तो ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं, क्या बने? ये 4 माइक्रोस्पोर्स। ये जो 4 जो माइक्रोस्पोर्स हैं, इनिशियली ये चारों एक साथ ज्वाइंट होते हैं। क्यों ज्वाइंट होते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली इज द कैलोस। तो कैलोस की वजह से क्या होता है? ये चारों एक साथ अटैच होते हैं। फिर टैपेटम एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उस एंजाइम का नाम है कैलेज। अभी डिस्कस किया था, टैपेटम कैलेज प्रोड्यूस करता है एंड टैपेटम ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है। ऑक्सिन हार्मोन है और कैलेज एंजाइम है। जब कैलेज प्रोड्यूस होगा तो ये चारों पॉलन ग्रेन्स, चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे। चारों माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है? कैलेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि हम एक प्लांट लेते हैं टाइफा एक प्लांट है, उसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स अलग नहीं होते, चारों एक साथ रह जाते हैं और एक साथ ही उनका पॉलिनेशन होता है। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स को बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स? कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स का मतलब होता है ये जो 4 जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये चारों अलग नहीं होंगे, ये चारों क्या होंगे? दे ऑल विल रिमेन टुगेदर और टुगेदर दे आर बीइंग पॉलिनेटेड, साथ में ही उनका पॉलिनेशन होता है। तो सच pollen grains are called as compound pollen grains, and that compound pollen grains we are going to talk about here is okay, कुछ प्लांट्स के अंदर मिलता है, बट नॉर्मली कैलोस यहां पर है, कैलोस डिसॉल्व हो जाएगा। कौन डिसॉल्व करेगा? कैलोस डिसॉल्व करेगा। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। An organic substance that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme is what? Cellulose. Sporopollenin. Sporopollenin is the most रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस। टेम्परेचर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है इसका, ह्यूमिडिटी बिगाड़ नहीं पाती है, उसके अलावा जो है वो एसिड अल्कली वगैरह से इसका नुकसान नहीं होता है। तो एक तरीके से कहा जाए ये कि पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे जो रेसिस्टेंट जो सब्सटेंस है वो कौन है? वो है स्पोरोपोलेनिन। तो दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो बेसिक सा पॉइंट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वेरी इंपॉर्टेंट। When pollen is shed at 2-cell stage, double fertilization does not take place. यही पॉइंट गलत लग रहा है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इससे कोई इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि पॉलिनेशन 2-cell स्टेज में हो रहा है या पॉलिनेशन 3-cell स्टेज में हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे पॉलिनेशन 2-cell स्टेज में हो या पॉलिनेशन 3-cell स्टेज में हो, 2 मेल गैमेट्स तो बनना ही बनना है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट गलत है। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज है भाई? तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है, ऐसे आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो 2 मेल गैमेट से एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है सेंट्रल सेल को और एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा इसको एग सेल को, तो उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसकी? एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये पॉइंट तो गलत लग रहा है। फिर आगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए एक ऑप्शन देखा और आंसर लगा के और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ गए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। तो ऑप्शन हमेशा चारों ही पढ़ना है। ठीक है, और चारों पढ़ने के बाद आंसर लगाना है। यहाँ तो मैंने लगा दिया है ऐसे, ये आपको नहीं करना है। ठीक है,
आपको पहले चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर जाकर के आंसर की में आपको आंसर लगाना है। एक बात। दूसरी चीज कि कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि आंसर की को छोड़ देते हैं, यानी पेपर तैयार हुआ, पेपर का टाइम आया तो सारे आंसर्स जो है वो बुकलेट पे, क्वेश्चन बुकलेट पे लगाते हैं, ठीक है, सोचते हैं सर लास्ट में लगाएंगे। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। क्यों है डेंजरस? ये इसलिए डेंजरस है कि कभी कभी टाइम शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन तो सब बिल्कुल सही लगाए हुए हैं, आपने सही सॉल्व कर लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस टाइम शॉर्ट हुआ, आप जल्दी में क्या कर रहे हैं, आपने अब आंसर की भरना शुरू किया, है ना। अब सही आंसर का भी आप गलत वहां पर लगा देंगे, बिकॉज अब आपके ऊपर प्रेशर है, और जो वहां पर जो इन्विजिलेटर्स हैं वो आपको कह रहे हैं बस 2 मिनट का टाइम रह गया है, 1 मिनट का टाइम रह गया है। अब उसमें आपके हाथ भी फूल जाएंगे और पैर भी फूल जाएंगे, यानी ग्रेट प्रेशर। फिर आप जो है बी और ए और सब सीरीज गलती कर देंगे। कई बच्चों के साथ, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आई है कि उनका सिर्फ सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाया कि उन्होंने ये गलती कर दी है। आप कभी ये नीट में ये गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जेनेटिव सेल, बिल्कुल सही बात है ये। पॉलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, ये है कुछ जो है मंथ्स के लिए वायबल होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आएगा टॉपिक्स। फिर इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि इंटाइन जो है वो पेक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ है, ये आंसर सही है। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द बर्ड इज कॉल्ड एज, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ये इसमें हम आगे भी आएगा, और दूसरी चीज जेनेटिक्स में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब मेंडल साहब की बात करेंगे तो वहां व्हाट इज इमैस्कुलेशन, तो इमैस्कुलेशन को ये कहते हैं हम, दिस इज इमैस्कुलेशन, ये इमेज है। तो ये क्या करते हैं, अर्ली स्टेज पर जो है इसका जो स्टैमेन है और जो एंथर है फीमेल प्लांट का, ठीक है, यानी जो फीमेल पेरेंट हम ले रहे हैं, ये किस चीज के लिए है, किस केस में हम इसको करते हैं, वी डू इट इन द केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं ना, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको फीमेल प्लांट लिया और इसको क्या ले लिया, मेल प्लांट लिया, और हम चाहते हैं कि इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा को और इसके ओवरी को फर्टिलाइज करे। हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इमैस्कुलेशन करेंगे। तो इमैस्कुलेशन किसका कर रहे हैं हम, फीमेल प्लांट का। मेल प्लांट का इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे, मतलब इसी का इमैस्कुलेशन कर दिया, इसका इमैस्कुलेशन करेगा तो पॉलन ग्रेन्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मेल प्लांट का इमैस्कुलेशन नहीं होता, इमैस्कुलेशन किसका होता है, फीमेल प्लांट का। तो इसका क्या, एंथर काट के हटा दिया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसकी बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग भी किसकी करेंगे, फीमेल प्लांट की करेंगे, क्योंकि इसका जो बैगिंग में क्या करते हैं, बैगिंग में ये जो है सपोज हमने कहा सब ये है आपका स्टिग्मा और ये स्टाइल एंड ओवरी एंड सो लाइक दैट ना, अच्छा सा डायग्राम नहीं बना खूबसूरत सा, तो ये सपोज आपकी, तो बैगिंग नहीं कर रहे हैं, ये स्टिग्मा है ना, इसके ऊपर पेपर लगा देते हैं, बटर पेपर और किसी चीज से कवर कर दिया ताकि इसके ऊपर कोई पॉलन ग्रेन्स नहीं आए, उसको बोलते हैं बैगिंग। तो बैगिंग भी किसकी करेंगे हम, फीमेल प्लांट। ये पूछा जाता है कि इमैस्कुलेशन किसका करना है, फीमेल प्लांट का, बैगिंग किसकी करनी है, फीमेल प्लांट की। फिर उसके बाद जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे और ये भी मैच्योर हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसके पॉलन ग्रेन्स को यानी इसके एंथर को लेंगे और इसके स्टिग्मा पे लाके श्रक कर देंगे, तो सारा पॉलन ग्रेन्स कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद फिर रीबैगिंग कर देंगे, दोबारा इसको बंद कर देंगे ताकि कोई और पॉलन ग्रेन्स बाय मिस्टेक नहीं आ सके। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज कॉल्ड एज, ये उसी पॉइंट है। आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसके भी मैं बात कर रहा था, इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। यानी क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या करते हैं, आगे चैप्टर है दैट इज द स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का जो चैप्टर है, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं कि वहां पर जो है वो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे। बैगिंग का मतलब बताया मैंने कि उसका स्टिग्मा को एक तरीके से कवर कर देंगे, फिर पॉलिनेशन कराएंगे और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, रीबैगिंग कर देंगे। तो दिस इज हाउ एक्चुअली द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दैट टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भाई, ये भी पॉइंट एनसीईआरटी का पॉइंट है, टू स्टडी पॉलन जर्मिनेशन सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पी, चिकपी, क्रोटोरेलिया, ठीक है। तो एंड बाल्सम, ये सब एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एंड विगा आर कलेक्टेड एंड डस्टेड ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो किसी को अगर आपको पॉलन जर्मिनेशन कराना है तो क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड पे डालेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, अ ड्रॉप ऑफ शुगर डालेंगे। क्या डालेंगे आप, शुगर का सॉल्यूशन। कितना परसेंटेज होता है, ये प्योरली एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो 10% होता है। तो शुगर हो गया ये, ठीक है, दिस इज शुगर एंड दिस इज 10%। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 15 to 30 मिनट्स में पॉलन ट्यूब्स उसमें से जर्मिनेट करने लगते हैं पॉलन ग्रेन से। तो ये प्रैक्टिकल में ये काम किया जाता है, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, शुगर, क्या परसेंटेज होती है 10%, और कितने देर में जो है वो पॉलन ट्यूब्स उसमें जर्मिनेट होने लगते हैं, तो 15 to 30 मिनट्स में जर्मिनेट होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज लेट मी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, pollen grain has a prominent two layered wall, दो लेयर वॉल इसमें होती है prominent, the inner wall is entine, is made up of cellulose and pectin, पहला पॉइंट सही है, is thin and continuous, ये भी सही है, हमने क्या देखा था, ये आप देखेंगे तो ये है माइक्रोस्पोर, ओके, और दिस इज द यू कैन से दैट इज द entine, और ये क्या होता है, एक्साइन। एक्साइन जो है वो थिक होता है और कंटिन्यूअस नहीं होता है, जगह जगह एक्साइन नहीं होगा, और जिस जगह पर एक्साइन नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज जर्म पोर, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जर्म पोर, और जर्म पोर का नंबर भी वैरी कर सकता है, जर्म पोर जो है वो इट कैन बी 1, अगर एक है तो उसको बोलते हैं मोनोकॉल्पेट, क्या बोलते हैं, मोनो, MONO, मोनोकॉल्पेट, COLPATE, मोनोकॉल्पेट। तो मोनोकॉल्पेट का मतलब एक जर्म पोर। यहाँ कितने जर्म पोर्स नजर आ रहे हैं, 3 नजर आ रहे हैं, एक जर्म पोर ये है, एक जर्म पोर ये है, एक जर्म पोर, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकॉल्पेट, क्या कहलाता है, ये ट्राइकॉल्पेट कहलाता है। ये क्या है, ये तो ये जर्म पोर्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है, इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस, ये भी पॉइंट है, इट इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, ये पॉइंट गलत है, दिस इज नॉट राइट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A एंड B हो जाएगा। अब इसमें भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे कि pollen grain has a prominent two layered wall and the inner wall is made up of cellulose and pectin, और आंसर लगा दिया, आ गया। बाकी के ऑप्शंस नहीं पढ़े, बाकी के ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमेशा ऑप्शंस चारों ही पढ़ने होंगे आपको, तब जाकर के आपको आंसर करना है। तो ये उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का है, द जेनेटिक सेल ऑफ अ पॉलन ग्रेन, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक सेल की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये भी पॉइंट अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। इज स्पिंडल शेप, उसका शेप भी कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये भी पॉइंट अपनी जगह पे सही है कि उसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, वो डेंस होता है, और उसके पास कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है। तो द राइट आंसर इज दैट द ऑल ऑफ दिस, ये भी पॉइंट बिल्कुल प्योरली एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये कैसा होता है, ये है आपका वेजिटेटिव सेल, और इसे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये है जेनेटिव सेल, और जेनेटिव सेल कहाँ फ्लोट कर रहा है, इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, स्पिंडल शेप है ये, और यही जो है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। वेजिटेटिव सेल को देखेंगे तो वैक्यूलेटेड है, यहाँ वैक्यूल्स नजर आ रही होंगी आपको, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल, ये वैक्यूल है, तो दीस आर द वैक्यूलेटेड सेल्स। तो दिस इज यू विल फाइंड इज हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ pollen grains a microspore mother cell undergoes, very very important, कि ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, ये क्या है, ये MMC, व्हाट इज MMC? MMC इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। सो द राइट आंसर इज दैट दिस इज 2N, दिस इज 2N, ये 2N है, डिप्लॉइड है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉइड है। अब इससे pollen grains बनना है, तो कितने डिविजन्स होने हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है माइटोसिस, सॉरी क्या होगा सबसे पहले, मियोसिस। तो जब मियोसिस होगा, when the meiosis will take place, this is the meiosis, so suppose the meiosis has taken place, okay, ये भी meiosis हुआ। तो meiosis जब होगा तो यहाँ पर 4 सेल्स बनेंगे, कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स। मैंने बताया टेट्राड की बात की थी, 4 एक साथ होते हैं, फिर बाद में कैलोस जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये एक सेल बना, ये एक सेल बना, तो ऐसे सपोज 4 सेल्स बन गए। ये 4 सेल्स क्या कहला रहे हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर। अब ये 4 माइक्रोस्पोर जो है, ये 4 pollen grains में चेंज हो जाएंगे, 4 pollen grains। अब यहां पर क्या होगा, इसमें तो अभी एक न्यूक्लियस है ऐसे करके, और ये हैप्लॉइड होता है, ये न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अब इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा, क्या होगा,
माइटोसिस होगा, एंड दिस माइटोसिस विल बी द फर्स्ट माइटोसिस। ये पहला माइटोसिस है, इसको हमने 1 लिख दिया। फर्स्ट माइटोसिस में क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक हो जाएगा वेजिटेटिव सेल और एक हो जाएगा जेनरेटिव सेल, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके अंदर सेकेंड माइटोसिस होगा, क्या होगा, दिस इज द सेकेंड माइटोसिस, इसको M2 कर दिया हमने, दिस इज व्हाट एक्चुअली इज द M2। तो M2 जब होगा सेकेंड माइटोसिस, तो इसमें क्या होगा कि ये तो रहेगा वेजिटेटिव सेल और ये 2 बन जाएंगे आपके क्या, ये 2 बन जाएंगे आपके मेल गैमेट्स। अब ये हो गई सारी कहानी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक मियोसिस हुआ और 2 माइटोसिस हुए, ठीक है। तो क्या आंसर होना चाहिए, 1 meiotic and 2 mitotic division. This is the right answer. So during formation of pollen grains, a microspore mother cell undergoes 1 meiotic and 2 mitotic divisions. So this is the right answer. ये उसी चीज को हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और बनता है ये कैलोज है, ये बताया था कैलोज। कैलोज क्या करता है, इन चारों को एक साथ होल्ड किया रहता है, फिर टैपेटम प्रोड्यूस करेगा कैलेज, कैलेज जब प्रोड्यूस करेगा तो ये सब अलग हो जाएंगे। अब ये एक बन गया माइक्रोस्पोर, ये एक माइक्रोस्पोर है। इसमें सबसे पहला क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो एक पहला माइटोसिस होगा तो उसमें क्या बनेगा, एक बनेगा वेजिटेटिव सेल और एक बनेगा जेनेटिव सेल, और फिर इस जेनेटिव सेल में फिर जब माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन बनेगा। द फॉलोइंग फिगर शोज, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 माइक्रोस्पोर्स एक साथ अटैच हैं। किसने अटैच किया हुआ है, कैलोज ने, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने अटैच किया है इन चारों को, कैलोज ने अटैच किया हुआ है। बाद में ये चारों अलग अलग हो सकते हैं, तो आमतौर से ये शेप कॉमन होता है, बट समटाइम्स ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्थेनियम और द कैरेट ग्रास, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द पॉलन एलर्जी इन इंडिया। कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉलन एलर्जी का मतलब पॉलन ग्रेन्स इनहेलेशन की वजह से क्या हो रहा है, एज्मा हो रहा है। क्या हो रहा है, एज्मा हो रहा है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है ना। डोंट से अस्थमा, अस्थमा नहीं होता है, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज एज्मा। एज्मा हो रहा है, सांस में परेशानी हो रही है एंड सो ऑन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, पार्थेनियम की वजह से हो रहा है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कैरेट ग्रास। ये इंडिया में आया कहां से, कैसे आया पार्थेनियम, एक्चुअली ये इम्पोर्टेड है। आजकल इम्पोर्टेड का जमाना है भाई, हर चीज इम्पोर्टेड। तो ये इम्पोर्ट हुआ है, कैसे इम्पोर्ट हो गया है, तो ये वीट के तौर पे आया है ना, इसको लाया नहीं गया है। अगर आपको उसके बारे में याद होगा, ग्रीन इवोल्यूशन के बारे में अगर याद होगा, तो MS स्वामीनाथन साहब, ठीक है, तो ही इज द फादर ऑफ द ग्रीन इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, MS स्वामीनाथन साहब। तो 1960s की बात है, जिस वक्त ये कहा गया था कि इंडिया में फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उस वक्त जो है वो स्वामीनाथन साहब को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप जो है देखिए कि जो है वो फूड प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ जाए ना, कि वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए। तो स्वामीनाथन साहब जो है उनके लिंक्स थे किससे, एनी बॉर्लॉग से। बॉर्लॉग साहब मेक्सिको के थे और उनको जो है वो नोबेल लॉरिएट थे वो। तो उन्होंने डिस्कस किया स्वामीनाथन साहब ने बॉर्लॉग साहब से कि बॉर्लॉग साहब हमें इंडिया में भी फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, यहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाए। तो स्वामीनाथन साहब ने कहा कुछ मत करो, हमारे यहाँ वीट ऑलरेडी न्यू वैरायटीज डेवलप कर चुके हैं, उस वैरायटी को इम्पोर्ट कर लो, उसको ले जाके इंडिया में ग्रो करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया साहब, बहुत जबरदस्त आइडिया है। तो वो वहां से वीट लाया गया मेक्सिको से, ठीक है। जब वीट आया तो ऐसा नहीं कोई डंडी वीट के लेके चले आएगा। वीट लाने का मतलब क्या है, जब ग्रो कराना है उसको, तो उसके लिए यू विल फाइंड इज दैट कि पूरा जो है एक तरीके से फार्मलैंड पूरा बहुत बड़े उसमें क्वांटिटी में लाना पड़ता है, तो उसके साथ कुछ वीट्स आ जाती है ना। वीट्स का मतलब अनवांटेड। तो उसी में पार्थेनियम जो है वो भी क्या हुआ, एयर इंडिया के थ्रू यहाँ चलाया भाई, ओके, उसको लाया गया, यहाँ पर आ गया। तो पार्थेनियम किसके थ्रू आया, वीट के थ्रू आया। उसकी फिर लंबी कहानी है, कभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे उसमें एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि पार्थेनियम किसके थ्रू आया है, तो पार्थेनियम जो है वीट के साथ एज अ कॉन्टेमिनेंट यहाँ पे आया। ये पार्थेनियम प्लांट है। कभी कभी आप देखेंगे सब आपके आसपास घरों के बगल में, आसपास खेतों में जो है या इधर उधर जो लैंड होती है, वहां पर इस तरह का प्लांट निकल आता है। तो हमें तो पता नहीं होता कि सिर्फ कौन सा प्लांट है, लेकिन ये प्लांट एक्चुअली क्या है, ये पार्थेनियम है, दिस इज द पार्थेनियम। तो ये वीट की तरह पे कहीं भी ग्रो कर जाएगा, और इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एलर्जी। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मेल गैमेट्स
formed by 16 microspore mother cells. Very very important questions. इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स 64 लगा के चले आते हैं, ये आंसर गलत हो जाएगा। आप देखिए क्या हो रहा है, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, कितने हैं भाई ये 16 है, ये तो दिया है क्वेश्चन 16 है। तो जब इससे क्या बनेगा मेल गैमेट, कितने मेल गैमेट्स बनने हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा मियोसिस होगा, तो मियोसिस होगा तो क्या बनेगा माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, दिस इज द माइक्रोस्पोर्स। कितने बनने चाहिए माइक्रोस्पोर्स भाई, एक माइक्रोस्पोर मदर से चार बनते हैं, तो 16 से कितने बनेंगे 16 into 4 is equal to 64। तो 64 मेल गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, 64 क्या बने हैं पॉलन ग्रेन्स बने हैं या माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ये माइक्रोस्पोर्स बने हैं 64। और हर माइक्रोस्पोर के अंदर कितने मेल गैमेट्स होते हैं, यानी हर पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट्स होंगे, तो ये तो वेजिटेटिव सेल हो गया और ये 2 मेल गैमेट्स हो गए, तो 64 into 2 is equal to 128। आइए बस समझे कैसे हो गया 128, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 120। तो नंबर ऑफ मेल गैमेट्स फॉर्म्ड बाय 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज दैट इज द 128। तो दिस इज द राइट आंसर हियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये assertion रीजनिंग का क्वेश्चन है। Pollen consumption has claimed to increase the performance of athletes and race horses। बिल्कुल सही पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर आप पॉलन कंजप्शंस करते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे, तो क्या होता है परफॉर्मेंसेस इंक्रीज करती हैं, खासतौर से एथलीट्स, जो लोग जो है एथलीट्स होते हैं या रेस हॉर्सेस है ना, घोड़ों को भी खिलाते हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉइंट अपनी जगह पे सही, रीजन पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, तो अपनी जगह पे ये पॉइंट भी सही है कि बहुत न्यूट्रिएंट होता है उसके अंदर, रिच होता है। तो यहाँ देखा जाए तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी क्या है यहाँ पर सही है। तो दिस इज द आंसर हियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन से गलत हैं, रॉन्ग, ठीक है। इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, तो ये गलत है, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, तो ये पॉइंट तो सही है, बताया तभी हम लोगों ने, स्पोरोपोलिन की जगह की वजह से जो है क्या होता है वेल प्रिजर्व होता है। Enzymes can degrade the organic material of the pollen grain exine, ये बात अपनी जगह पे गलत है कि enzymes उसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। And sporopollenin can withstand high temperature, strong acids and alkali, this point is correct। यही हो गया, तो कौन सा गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा, ये है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स हमारे, तो दिस इज you'll find the answer is, ठीक है। नेक्स्ट, the process of formation of microspores from pollen mother cell through meiosis is called as, क्या बोलते हैं, is called as microsporogenesis। Microsporogenesis, process of formation of microspores from the pollen mother cell or ये है आपका MMC, microspore mother cell है, क्या है ये MMC, microspore mother cell। इससे क्या बने, इससे बने 4 माइक्रोस्पोर्स बने, क्या बने 4 माइक्रोस्पोर्स, है ना, अभी हमने डिस्कस किया, एक माइक्रोस्पोर ये, एक माइक्रोस्पोर ये 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। तो ये जो स्टेप कहला रहा है, दिस स्टेप इज एक्चुअली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये है स्टेप जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा टर्म है जिसे कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ये क्या चीज है, तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ये है कि ये जो माइक्रोस्पोर है, यानी कि ये माइक्रोस्पोर हुआ, ठीक है, अब इससे क्या बना, ट्यूब सेल बना, जेनेटिव सेल बना, और जेनेटिव सेल के बाद जो है वो क्या बन गया, जेनेटिव सेल के बाद 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया लाइक दिस, तो ये एक मेल गैमेट है और एक मेल गैमेट ये है। तो ये जो स्टेप्स कहला रहे हैं यहाँ माइक्रोस्पोर से, ये जो स्टेप कहलाता है इसको कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ये माइक्रोगैमेटोजेनेसिस है। और उसी का कॉन्टेम्पररी क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस, ये फीमेल वाले पार्ट में हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया कि पॉलन मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर्स बन रहा है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट assertion है, the period for which pollen grains remain viable is highly variable, ये बात अपनी जगह पे सही है, variability होती है, and viability of the pollen grains depends some extent on the prevailing temperature and humidity, ठीक है, ये भी रीजन भी सही है। एनसीईआरटी में खासतौर से पॉइंट दिया हुआ है कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द वायबिलिटी ऑफ द pollen grains। तो pollen grains की वायबिलिटी में ये, तो द राइट आंसर इज दिस, दैट इज द, दे बोथ आर
you can say that is the A is A and R are true and R is the correct explanation. Well, so this is what you will find is about the this question. Next question we are going to talk about, that is the again that is as assertion using question. Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial affections in some people, leading to acute respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc. तो ये सही है कि बहुत सारे स्पीशीज है, खासतौर से हमने पार्थोनियम का डिस्कशन किया था. In some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, pollen grains lose viability within 30 minutes. ये बात सही है या बात गलत है? अच्छा, पॉइंट्स दोनों एनसीईआरटी के हैं, आप देखेंगे एनसीईआरटी में दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं. क्या है इसमें? ये पॉइंट तो सही है, pollen grains of many species cause severe allergies. This assertion is right. ठीक है. अब ये वाला जो पॉइंट है कि Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae में pollen grains की वायबिलिटी कितनी देर रहती है? तो it remains viable for months. 30 minutes वाला पॉइंट गलत है. 30 minutes में एनसीईआरटी में दिया, वो किसके लिए दिया हुआ है? वो राइस है, व्हीट है और ग्रेन्स हैं, तो उनमें जो है वो क्या बताया गया कि वायबिलिटी 30 मिनट्स की होती है. लेकिन ये जो Rosaceae and Leguminosae and Solanaceae है, इसके अंदर वायबिलिटी कितनी होती है? 4 months. तो इसमें क्या है? इसमें A is true but R is false, कि A सही है और R क्या है? गलत है. तो this is the right answer here. Which of the following is contributed by P. Maheshwari? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप अगर देखेंगे ये पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, तो जो यूनिट जब आप एनसीईआरटी का जब रिप्रोडक्शन का जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वहां पर महेश्वरी साहब की एक बहुत स्मार्ट सी तस्वीर लगी हुई है माशाल्लाह, और उसमें ये पॉइंट्स पूरा उनका डिस्क्रिप्शन है कि क्या काम किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है. तो वेरी इंपॉर्टेंट ही कि जो कंट्रीब्यूशन था महेश्वरी साहब का वो कि आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इमैच्योर एम्ब्रियो को निकाल करके क्या कर सकते हैं, लैब में कल्चर किया जा सकता है, उससे प्लांट बनाया जा सकता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर. तो वो उस पे इन्होंने जबरदस्त काम किया. फिर एंथर कल्चर मैंने पहले बताया था कि व्हाट इज एंथर कल्चर. तो एंथर कल्चर में क्या करते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स निकाल लेते हैं. ठीक है. तो गुहा साहब एंड महेश्वरी, तो गुहा एंड महेश्वरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस टेक्निक दैट्स कॉल्ड एंथर कल्चर. और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एंथर कल्चर सबसे पहले जिस प्लांट में हुआ उस प्लांट का नाम था दतूरा. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन्स में कि दतूरा एक प्लांट है जिसमें सबसे पहले एंथर कल्चर किया गया. और एंथर कल्चर का सबसे जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि 100% ये हैप्लॉइड प्लांट्स बनता है. कैसा प्लांट बनता है इसे? हैप्लॉइड. फिर उस हैप्लॉइड प्लांट से फिर उसको डिप्लॉइड कर देते हैं, ओके, 2n कर देते हैं. तो उसमें सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब कैसे हो जाएंगे? होमोजाइगस हो जाएंगे. और फिर तीसरा क्या है? इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन. तो ये तीनों कंट्रीब्यूशन जो है, तीनों काम जो है वो किसने किया है? पी महेश्वरी साहब का कंट्रीब्यूशन है. एंड दैट्स व्हाई पी महेश्वरी साहब इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर माने गए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. फिर ये पॉइंट, अनदर पॉइंट इज नॉट इन एनसीईआरटी, पॉलिनिया. पॉलिनिया आर फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलिनिया होता क्या है? तो इसका मैं आंसर बता दूं. पॉलिनिया जो है वो मिलता है आपको कैलाट्रोपिस, जो कि एक फैमिली से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं एस्क्लेपिडेसी फैमिली. वेरी इंपॉर्टेंट. कैलाट्रोपिस को कॉमनली आल्सो कॉल्ड एज मिल्क वीड. क्या बोलते हैं इसको? मिल्क वीड बोलते हैं. और हिंदी वगैरह में उसको मदार का पेड़ बोलते हैं. ठीक है. तो उसको बोलते हैं. तो कैलाट्रोपिस में पॉलिनिया मिलता है. व्हाट इज पॉलिनिया? पॉलिनिया ये होता है कि एक पॉलन सैक के सारे पॉलन ग्रेन्स वो एक साथ आ जाते हैं. ये एक सैक बन गया और इस सैक में क्या है? हजारों पॉलन ग्रेन्स एक साथ आके जमा हो जाएंगे. यानी एक जो पॉलन सैक है उस पॉलन सैक के सारे पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर आ जाएंगे. तो ये एक पॉलिनियम हो गया और ये दूसरा जो पॉलन सैक है उसका पॉलिनियम हो गया. तो ये दो पॉलिनियम एक साथ जो है वो आ जाते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ट्रांसलेटर भी बोलते हैं. और ये पूरा का पूरा जो पॉलिनिया है वो इंसेक्ट के बॉडी में अटैच हो जाएगा और फिर वहीं से उसका पॉलिनेशन हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली. इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो ये आप देखेंगे साहब ये क्या है? ये एक पॉलिनियम है और ये एक पॉलिनियम है. तो ये एक किससे बना? ये एक पॉलन सैक से बना. जैसे मैंने कहा साहब ये जो है वो इस तरीके से हमने कहा ये पॉलन सैक है. ये एक पॉलन सैक, एक पॉलन सैक, एक पॉलन सैक और एक पॉलन सैक. तो हमने कहा ये एक लोब के जो दो पॉलन सैक्स हैं, एक पॉलन सैक है, एक पॉलन सैक है. तो इसके सारे पॉलन ग्रेन्स एक साथ आ गए, वो इस पाउच में आ गए. अब इसको हम बोल रहे हैं पॉलिनियम. और ये वाला सारा यहाँ आ गया, इसको बोलते हैं पॉलिनियम. और ये अटैचमेंट्स के लिए होते हैं. तो ये क्या करता है? ये
इंसेक्ट्स के बॉडी में अटैच हो जाता है और इससे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिनिया इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस एंड ऑल. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है? गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड. ये बात तो सही है कि गैमेट्स हमेशा कैसे होंगे, आपको हैप्लॉइड होंगे. स्पोर्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड. ये भी हैप्लॉइड होते हैं स्पोर्स. ठीक है, यानी हर जगह आपको स्पोर्स कैसे मिलेंगे? तो बिकॉज स्पोर्स का भी फॉर्मेशन मियोसिस से होता है और गैमेट्स का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, मियोसिस से होता है. इसकी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी में. किंगडम प्लांटी में खास तौर से इसका डिस्क्रिप्शन होगा. तो यहाँ पर राइट आंसर, बोथ स्पोर्स एंड गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड. दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. The pollen grains of rice and wheat lose their viability in, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि राइस और व्हीट में वाइबिलिटी कितनी देर की होती है? 30 मिनट्स की होती है. वेरी इंपॉर्टेंट. और रोजेसी वगैरह जो फैमिलीज हैं, सोलेनेसी, रोजेसी में वहां कितनी होती है? तो वहां पर मंथ्स की वाइबिलिटी होती है. और अगर आपको ईयर्स के लिए अगर आपको स्टोर करना है तो क्या करेंगे आप? लिक्विड नाइट्रोजन में आप उसको स्टोर करेंगे -196 डिग्री सेल्सियस पर. तो पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स. ईयर्स के लिए आप स्टोर कर सकते हैं. सो ऑन. फिर एसेशन है, pollen mother cells are the first male gametophytic cells. Right or wrong? ये wrong है. pollen mother cells gametophytic cells नहीं है. gametophytic cells जो है, हमने कहा साहब ये है क्या? pollen mother cell. क्या है ये? pollen mother cell. तो pollen mother cell जो है यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स. तो पहला जो मेल गैमेटोफिटिक सेल होगा वो कौन होगा? वो होगा माइक्रोस्पोर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये माइक्रोस्पोर जो है ये है पहला फर्स्ट मेल गैमेटोफिटिक सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये पॉइंट असर्शन गलत है. ये ईच पॉलन मदर सेल गिव राइज टू 2 पॉलेंस. ये भी गलत है. ईच पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव्स राइज टू 4 पॉलेंस, नॉट द 2 पॉलेंस. तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? दोनों गलत हैं. बोथ आर रॉन्ग. ठीक है. Next question. How many pollen mother cells should undergo meiotic divisions to produce 64 pollen grains? आपको कितने चाहिए? 64 pollen grains चाहिए आपको. You need how many pollen grains? 64. तो कितने होने चाहिए आपके पास pollen mother cells? Simple. Divided by 4. एक pollen mother cell से 4 बनते हैं. तो अगर 64 चाहिए तो कितना बन जाएगा? तो 64 is by 16 will give rise to 64. ठीक है. तो this is you'll find callase enzyme which dissolves callose of pollen tetrads to separate 4 pollens is provided by, discuss कर चुके हम लोग. callase enzyme कहाँ से आता है? tapetum से आता है. That's very important. callose को क्या करता है? ये dissolve कर देता है. तो this is what. तो यहाँ देखेंगे हम ये सब क्या है? ये callose है. ये जो दिखा रहा है ये callose है. ये तो ये callose जो है वो क्या करता है? तो इन सबको अटैच किए हुए. तो callose is a part of pollen mother cell और microspore mother cell. और फिर यहाँ पर ये चारों माइक्रोस्पोर्स को अटैच किया जाता है. बाद में जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएंगे. और अगर ये चारों अलग नहीं होते हैं तो ऐसे हम पॉलन ग्रेन्स को बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स. क्या बोलते हैं इनको? कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन स्टेटमेंट्स. ठीक है. आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन. ओके, तो ये पॉइंट अपनी जगह पे सही है. ठीक है. इनर इंटाइन इज पेक्टोसेलुलोजिक इन नेचर. ये भी सही लग रहा है. ठीक है. जेनेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन्स अबंडेंट फूड रिजर्व. ये गलत है. ये ट्यूब सेल की और वेजिटेटिव सेल की कैरेक्टरिस्टिक है कि ट्यूब सेल बिगर होता है और उसके पास फूड रिजर्व होता है. वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द जेनेटिव सेल. ये पॉइंट भी अपनी जगह पे गलत है. ये जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? जेनेटिव सेल की कैरेक्टरिस्टिक है. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू? इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? तो थर्ड एंड फोर्थ जो है स्टेटमेंट आपका सही नहीं है. तो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इज दैट द 39 क्वेश्चंस. Then the 40th question is that the study of types of honey and its curative effect is known as melitopalenology. ये भी क्वेश्चन जो है वो नीट में आ चुका है. कई साल पहले का क्वेश्चन है ये. melitopalenology की बात करते हैं. दो पैलिनोलॉजी का मतलब, पैलिनोलॉजी is the study of the branch which deals with the study of, is the branch of biology which deals with the study of pollen grains. कि pollen grains के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी बोलते हैं. उसकी कई पार्ट्स होती हैं. एक होता है एरोपैलिनोलॉजी. एरोपैलिनोलॉजी क्या चीज है? तो एरोपैलिनोलॉजी वो ब्रांच है जो पॉलन ग्रेन्स जो हवा में उड़ रहे हैं और उससे जो एजमा हो रहा है और एलर्जी हो रही है, तो दैट कम्स अंडर द एरोपैलिनोलॉजी. और मेलिटोपैलिनोलॉजी क्या चीज है? कि जो पॉलन है ना, जो हनी बी जो है वो पॉलन ग्रेन्स खा रही हैं और उससे फिर क्या बन रहा है? हनी बन रहा है. और वो हनी किस डिजीज के ट्रीटमेंट में उसका इस्तेमाल है? तो दिस ब्रांच
हनी को कहते हैं हनी इज अ पेनिसिया। पेनिसिया का मतलब इज अ मेडिसिन फॉर मेनी डिजीजेस। ठीक है, तो ये पूरी इसकी ब्रांच बनाई गई है कि ये जो वो है हनी है, हनी बीज हैं, ये उस एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर जाते हैं, वहां से पॉलन ग्रेन्स खाते हैं, उससे हनी बनता है। तो ये हनी इस डिजीज के ट्रीटमेंट में है, ये हनी इस डिजीज के ट्रीटमेंट, सो ऑन। तो दिस होल ब्रांच इज कॉल्ड एज मेलिटो palynology. Okay, then we have the next question. What is pollen grain? So pollen grain is actually the male gametophyte, क्योंकि male gametophyte का मतलब ये वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, जो वहाँ मेल गैमेट्स बन रहे हैं, मेल गैमेट्स स्टोर्ड हैं, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। तो pollen grain is मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? अभी फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक, पढ़ेंगे आगे हम। एम्ब्रियो सैक क्या होगा? तो वो फीमेल गैमेटोफाइट है। तो दिस इज द 42nd क्वेश्चन क्या है? When the pollen grains is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. The vegetative cell is कैसा होता है? बिगर होता है, स्पिंडल शेप तो नहीं होता है, स्पिंडल शेप तो जेनेटिव सेल होता है। Has abundant food reserve, ये बात भी सही है, ठीक है। And has large irregularly shaped nucleus, ये बात भी सही है। तो A, C and D कोई है आंसर? ये वाला आंसर है A, C and D। सॉरी, तो ये हो गया आंसर। देन वी हैव द साइज ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। बिल्कुल कोई उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साइज कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर्स जो है वो साइज होता है इसका। Then which part of the reproductive structure produces both enzymes and hormones? Very important, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। The right answer is tapetum। बताया था टैपेटम एंजाइम कौन सा प्रोड्यूस करेगा? तो टैपेटम एंजाइम प्रोड्यूस करता है कैलेज, और हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है ऑक्सिन। हार्मोन क्या करता है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नीडेड फॉर द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स? पॉलन ग्रेन्स के अर्ली डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? द हार्मोन इज ऑक्सिन एंड टैपेटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर 40 एंड हम 45 क्वेश्चंस का ये सेट टॉपिक लिया करेंगे। तो अब अगर आपने इन 45 क्वेश्चंस को आपने अगर देख लिया, कवर कर लिया, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स आपका कंप्लीटली तैयार है आपका, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि इसके सारे टॉपिक्स को कवर कर लें, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस जो है डिसबैलेंस है। फ्रॉम एवरी टॉपिक वी हैव ट्राइड टू कवर द क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको जो है वो रेगुलर बेसिस पर टॉपिक्स लेते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वहां पर उसके ताल्लुक से जो चीजें जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें 45 क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद पॉलिनेशन का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से किसी टॉपिक से आया है तो वो है पॉलिनेशन। फिर उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह की बात करेंगे। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टर्म पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। And thanks for listening this thing, okay? And may Almighty God help you in getting a good score in the NEET, okay? And you can can forward this thing links to your friends also, ठीक है। और देखिए, मदद किसी की करने से किसी का नुकसान नहीं होता है। आमतौर से हम लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, है ना। सेल्फिश का मतलब समझ आता है? एक तो सेल्फिश जो मछली बेचते हैं उनको भी बोलते हैं सेल्फिश, ठीक है। और इंसान वाकई में सेल्फिश है, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि हमने अगर किसी की कोई बता दिया, साहब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जो है, या ये वहां से पढ़ लो, ये बहुत अच्छा आएगा, तो लगता है यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है ना। अपने दोस्त को ही कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को ही आप कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, और सोचते हैं साहब उसका सिलेक्शन नहीं है ना। तो लोग क्या ना, दूसरों की आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मिनट आई विल टेक मोर ऑन दिस, कि आज हम लोग अपने गमों से दुखी नहीं है। हम लोग किससे दुखी हैं? हमारा पड़ोसी खुश है उससे हम लोग क्या, या हमारा दोस्त खुश है, ठीक है। तो हम दूसरों की खुशी की वजह से हम दुखी हैं, तो हमारे अपने दुख को मैटर नहीं करते, लेकिन हमारा पड़ोसी कैसे खुश है। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जोक भी है ना, कि एक जो है वो एंजल आए, एंजल है ना, उन्होंने कोई दुआ मांग रहा था, कोई आदमी के साथ ये हो दुआएं मांग रहा था। तो एंजल ने कहा, भाई बताओ भाई, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी, ओके, लेकिन उसके साथ एक शर्त है, जितना तुम्हें दिया जाएगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दिया जाएगा। अब बेचारा बहुत टेंशन में, यार ये तो मसला पड़ गया, ठीक है, कि जो है अगर मैंने एक गाड़ी मांग ली तो उसकी 2 हो जाएंगी, मैंने एक घर मांग लिया उसकी 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये तो बड़ा टेंशन में आया कि मैं मांगू तो क्या मांगू। फिर बहुत देर सोच के कहा
कि ऐसा है मेरी एक आंख फूट जाए, ये है मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी क्या हो जाएगा, उसकी दोनों फूट जाएगी, अंधा हो जाएगा। तो ये है मसला कि हम लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, ठीक है, हम किससे दुखी हैं, तो हमारा पड़ोसी कैसे खुश है, हमारे दोस्त कैसे खुश है, नहीं, हेल्प करना चाहिए। और देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि ऊपर वाला जो गॉड है, ऑलमाइटी गॉड, वो उसी की हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करता है। ऊपर वाला उसी के ऊपर रहम करता है जो दूसरों के ऊपर रहम करता है। तो अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, आप दूसरों को बताएंगे, हेल्प करेंगे, तो आपका तो सिलेक्शन होगा इंशाल्लाह, नहीं आप ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा, ठीक है। Okay, so thanks for be the part of the system, inshallah, or we're going to continue it further also, inshallah. Thank you, thank you, thank you.